Good morning, all of you. Some days stop me to थोड़ा मात्र 2 मिनट में. Good. Good morning, ma'am. Mute. Morning, ma'am. Good Huh? afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Yes. Afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Yes, good afternoon. अपने आप को म्यूट कर लीजिए. Good afternoon. Good afternoon. Fatapat. Good afternoon, ma'am. Yes. You take out your copy, book, and take the pencil. We are discussing the different type of topic here. Please just a minute. Now, children. Yesterday we discussed the how image formed by the plane mirror and also what is the incident ray, reflected ray and normal ray. Okay, is it clear up to this topic? No any problem? Yes, ma'am. No, ma'am. Ma'am, we have to start from the multiple images. Okay, yes, very good. So yesterday we also discussed about the what is the difference between real image and virtual image. So can anyone tell me what is the difference between real image and virtual image? Ma'am, may I Siddhant? May I Siddhant? Raise your hand. All of you mute yourself. Siddhant, one difference tell me. Yes, ma'am. Ma'am, real image is inverted, and ma'am, virtual image is erect. And real image obtained on screen. Whereas Ma'am, screen. multiple. मैम आप बोली थी कि मैम आप बोली कि एक डिफरेंस बता तो मैम एक ही डिफरेंस बता मैम. Okay, good. So I'm telling you, real image obtained on screen, while multiple images are not obtained on screen. And one difference. मैम virtual image. Swastina, what is the difference? Yes, ma'am. Can I say Akansha? Swasti. Real image. Yes. Ma'am, can I? Real image. Real image is inverted, but virtual image is erect. Real image is obtained on screen, but virtual image is obtained on screen. It is not obtained on screen. Yes. Okay, Swasti. Good. What is Natik? Yes, Natik, tell me. Real image is inverted, but a virtual image is erect. Okay. Real image obtained on screen, Yes. but a virtual image is not obtained on screen. Okay. Thank you. Now, Akansha, I want to ask you, can you tell me what is the difference? What is the, can you tell me ki when we see the, what do you mean by the incident ray and reflected ray? Ma'am, reflected ray image. And can you tell me what is the multiple image? First of all, very short definition, multiple image. Ma'am, more than one image on a plane mirror is called ma'am a multiple image. Yes. If anyone asks you ki what is a multiple image, so first तो हमारा यही हुआ कि more than one image is called More than 1 minute. हाँ, more than one image is formed, that is called the multiple image. So children, take out the page number 181 and we are discussing the multiple image. Okay, we are discussing here the multiple image. All of you take out the book. We are discussing here the multiple image. Means more than one image are formed, that is called the multiple.
Yes. So children, multiple image means ki multiple image, it is a phenomena. If you want to write, because definition is not given in book. If you want to write, you can write. It is a phenomena in which we get multiple images of the object. मैं इसमें यहाँ लिख रही हूँ, आपको लिखना है तो लिखिए. It is the phenomena. It is the phenomenon in which we get multiple images of the object means कि किसी ऑब्जेक्ट का मल्टीपल इमेज जब हम देखते हैं तो you write in your copy, तो उसे हम ये मल्टीपल इमेजेस कहते हैं. Because the image by one mirror, because the image by one mirror, मतलब एक मिरर का इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट बन जाता है. Because the image by one mirror act as an दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा. Act as an object for the second mirror. मतलब when we get the multiple image, so this is called the multiple image. But in this phenomenon, एक इमेज दूसरे इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है. Okay. In image of the one mirror act as an object for the second mirror. दूसरे के लिए पहला वाला ऑब्जेक्ट का एक्ट करता है. So this is called the multiple image. You can write in your copy because it is not given in book. That is why I am telling you. Best example of children, this is the idea of multiple image formed by plane mirror kept inclined in one another used in the toy. एक कैलिडियोस्कोप या पेरिस्कोप जब आप बनाएंगे तो आप ये क्लियर हो जाएगा कि मल्टीपल इमेज बेस्ड ऑन द कैलिडियोस्कोप एंड पेरिस्कोप. तो व्हाट इज द पेरिस्कोप? Periscope is another application of multiple reflection. Okay. पेरिस्कोप, अब पेरिस्कोप के बारे में भी लिख लीजिए, ये भी बुक में खास नहीं दिया है. पेरिस्कोप. चिल्ड्रन, बोर्ड क्लियर है? बोर्ड आपको क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Periscope is another application. ये दूसरे एक और ये ऐसा पेरिस्कोप इसका एग्जाम्पल है, इसका यूजेस है. पेरिस्कोप में ये यूज होता है मल्टीपल इमेज का. तो आप लिख सकते हैं पेरिस्कोप इज अनदर एप्लीकेशन ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन. अनदर एप्लीकेशन ऑफ मल्टीपल reflection, which is of a great practical utility, जिसका बहुत ज्यादा practical utility होता है, which is of great practical utility, जिसका बहुत ज्यादा utility होता है. ठीक है. और पेरिस्कोप इज ऑल्सो यूज टू डिटेक्ट ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट हाइट से भी देखा जाता है. तो आप एक और एग्जांपल लिख सकते हैं कि इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट देखने के लिए, डिटेक्ट ऑब्जेक्ट. ये जितना भी आपके डिटेक्टिव आप मूवी देखते हैं ना, ये जितने भी होते हैं ना, वो पेरिस्कोप यूज करते हैं. तो ये है कि यूज टू डिटेक्ट ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट हाइट एंड डिफरेंट
राइट। मैम आप एक और बार बोल दीजिए ना मैम, थोड़ा आपका हैंड राइटिंग समझ में नहीं आ रहा। Periscope is another application. Periscope is another application. Periscope is another application of multiple reflection. Of multiple reflection. मैम थोड़ा सा बोर्ड को आगे कीजिए ना। क्लियर? मैं बोल भी रही हूँ। पेरिस्कोप इज अनदर एप्लीकेशन ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन विच इज ऑफ अ ग्रेट प्रैक्टिकल यूटिलिटी, विच इज ऑफ ग्रेट प्रैक्टिकल यूटिलिटी, जिसका बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल यूटिलिटी होता है बच्चे। जैसे कि इट, फिर दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, इट इज यूज टू डिटेक्ट ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट हाइट। डिफरेंट हाइट से ऑब्जेक्ट को देखने के लिए भी यूज किया जाता है। तो आप लिख सकते हैं, यू कैन राइट इट इज यूज टू डिटेक्ट ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट हाइट। चिल्ड्रन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा। तो यू डेफिनेटली राइट, ये सब एक्स्ट्रा नॉलेज है, दिस इज नॉट गिवन इन योर बुक। मैम आप जो भी लिखवाती है ना मैम, हाँ मैम उसको मैं फेयर कॉपी में उतारते हैं मैम। वेरी मैं गुड, पहले रफ में लिख लेते हैं। गुड, सारे बच्चे करते होंगे, वेरी गुड। आप कैलिडियोस्कोप का एक लिख लीजिए, कैलिडियोस्कोप, आप कैलिडियोस्कोप का एक लीजिए, कैलिडियोस्कोप। Yes, kaleidoscope is a type of mirror. Kaleidoscope is a type of mirror containing टाइप ऑफ मिरर। ये आप प्रैक्टिकल जब हम लोग का होगा ना, या आपको कोई हम लोग बनाने कहेंगे साइंस एग्जीबिशन में, तो आप ये बना सकते हैं। पहले जान जाइए क्या है, देन यू विल मेक इट। तो लिखेंगे कैलिडोस्कोप इज अ टाइप ऑफ मिरर कंटेनिंग containing small colored object, containing small, छोटे छोटे colored object होते हैं अंदर, small colored objects। ये ऊपर है, small colored object that show beautiful pattern, जो कि बहुत सुंदर पैटर्न बनाते हैं। that show beautiful pattern, that show beautiful patterns due to multiple reflection। एक मिनट बताती हूँ, मल्टीपल रिफ्लेक्शन। यस बच्चे, मैं एक बार और बोल देती हूँ, कैलिडोस्कोप इज अ टाइप ऑफ मिरर। मैं बोल रही हूँ, सुनिए, कैलिडोस्कोप इज अ टाइप ऑफ मिरर कंटेनिंग स्मॉल कलर्ड ऑब्जेक्ट। ऐसा एक कैलिडोस्कोप एक बनाया जाता है, आप बना सकते हैं कैलिडोस्कोप को, उसमें छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कलर्ड ऑब्जेक्ट, जिसका कि बहुत सा ब्यूटीफुल पैटर्न बनता है। जिसका डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं, कैलिडोस्कोप इज अ टाइप ऑफ मिरर containing colored object that show the beautiful patterns
that show the beautiful patterns due to multiple reflection. Is it clear, बच्चे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. It is very clear to us. Okay, very good. So let's proceed. यानी कि these two example, periscope and kaleidoscope, are very good example of the multiple images. When you go in any showroom or parlor, hair parlor, beauty parlor, anywhere, you just see so many images. Barber shop. Yes, because so many images are formed, so many different images are formed due to the multiple reflection. So this is the children multiple reflection. अब activity 3 में भी यही दिया है कि take 2 plane mirror, 2 plane हम mirror लेंगे, 2 plane mirror लेंगे. We take the 2 plane mirror और set them at right angle to each other with their edges. Edges से उसको हम ऐसे set कर देंगे. Edges मतलब किनारे का पोर्शन है, ये जैसे ये है और ये है. तो edges means जिसके किनारे का जो पोर्शन होता है उसको edges कहते हैं. तो उसको इस तरह से set कर देंगे. ठीक है, we can touch with the edges. Edges से उसको हम ये set कर देंगे. Place some object between the mirror. और दोनों के बीच में हम कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे. How many images of the object do we have? Now set the plane mirror और different angle में आप सेट करते जाइए. आप अपने घर में करके देखिएगा और different angle में आप सेट करते जाइए तो you see that so many images are formed. और आप मुझे बताएंगे, this is your homework. कल मैं पूछूंगी, आप मुझे बताएंगे कि कौन कौन से इमेजेस फॉर्म्ड हो रहे हैं और कितने एंगल पे कितने इमेजेस फॉर्म्ड हुए हैं. ये मैं कल आपसे मैम ये एक्टिविटी भी लिख लेंगे. हाँ. मैम ये एक्टिविटी कॉपी में लिख लेंगे. देखेंगे और प्रैक्टिकल करके देखेंगे. 2 प्लेन मिरर के बीच में आप एंगल बना के देखेंगे कि हाउ मेनी इमेजेस आर फॉर्म्ड, कितने इमेजेस बन रहे हैं और मुझे कल आप बताएंगे कि मैम इतने इमेजेस बने. चिल्ड्रन, इस संडे आपका मुझे लगता है साइंस टेस्ट है, तो आज मैं डिस्कस करके आपको लेसन दे दूंगी. मुझे लगता है कि इसके पहले कौन लेसन था? मैम इसके पहले सॉइल चैप्टर था. तो मुझे ऐसा लगता है कि सवाल ही रहेगा. आई विल डिस्कस एंड टेल यू, इन्फॉर्म यू. मैं आपके व्हाट्सएप पे लिख दूंगी. आई विल मैम हीट रहेगा मैम शायद से मैम क्योंकि मैम चैप्टर 3 के बाद मैम नहीं हुआ है मैम हम लोग का टेस्ट. Children, I will discuss to another teacher and inform you. Okay. So today, yeah, Okay, ma'am. I will inform you. कि what is the your question and everyone try to give the test. अब हम लोग आते हैं बच्चे. Yes मैम. स्फेरिकल मिरर. स्फेरिकल मिरर मीन्स क्या होता है? अब हम लोग मिरर पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. मिरर की व्हेन यू लुक द लार्ज शाइनिंग स्टेनलेस स्टील स्पून को, ये जब आप स्पून देखते हैं तो ये देखिए स्टेनलेस स्पून आपने देखा है, तो इधर कर्व्ड है और इधर ऐसे है. इससे हम लोग पहचान सकते हैं कि हमारा ये जो कर्व पोर्शन है इसको हम कह सकते हैं कॉनकेव मिरर, और इधर इसको अंदर वाला पोर्शन होता है इसको हम कॉन्वेक्स मिरर कह सकते हैं. कॉन्वेक्स. ओके. ये फ्लफी पोर्शन वी कैन से इट इज अ कॉनकेव एंड दिस इज द पोर्शन शाइनी पोर्शन वी कैन से इट इज अ कॉन्वेक्स. ओके चिल्ड्रन, तो यू कैन सी, आप देखिए, तो मीन्स कि हमारे मिरर में वन शुड बी स्फेरिकल. जैसे कि एक बॉल लेंगे, कोई एक गेंद लिया और बॉल को दो टाइप में आप डिवाइड कर देंगे. अगर प्लास्टिक का बॉल होता है जिसको खोला जाता है ना, खोल के कुछ खाने वाला चीज मीठा मीठा आता है, क्या आता है छोटे बच्चे खाते हैं? मैम जेम्स. मैम जेम्स. मैम जेम्स. मैम जेम्स. और उसको खोलने के बाद यस मैम दो पोर्शन में डिवाइड हो जाता है. दो पोर्शन में डिवाइड हो जाता है. तो यू सी द डायग्राम, आप अपने बुक में डायग्राम देखिए, ये ऐसे पोर्शन में डिवाइड. तो इसका जो इंटरनल पोर्शन होता है दैट वी कॉल द, इसको हम क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स कहते हैं. और इसको ये वाले पोर्शन को कॉनकेव. म्यूट योरसेल्फ. म्यूट बच्चे. साइकिल ले आते हैं, हम अकेले चला.
इसको मैनर नहीं है, बैकग्राउंड वॉइस आ रहा है। चलिए, तो दिस इज द, नाउ वी आर रबिंग। अब करेंगे आपको मिरर। व्हाट इज द मिरर? You just take out your copy and draw with me mirror. तो जैसे हमारा कॉनकेव मिरर है, ये हमारा जो होगा, this is the concave mirror. This is the shiny surface and this is the concave. This is the concave mirror. Concave mirror. Okay, children? And this is the convex mirror. This is the convex mirror. Okay, this is the concave and this is the convex mirror. तो ये हमारा हो गया concave mirror. तो जब इस मिरर में हम डायग्राम बनाएंगे तो we are drawing like that. जैसे बीच से एक पोर्शन से ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा पोल हो गया, बीच का पोर्शन हमारा पोल हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? पोल हो गया। और हमारा यहाँ पे हो गया फोकस हो गया, और इधर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। मतलब सेंटर, ये सीधा लाइन जाएगा, आप सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज द फोकस एंड दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो डायग्राम इधर बनेगा, इनसाइड बनेगा। ये वाले कॉनकेव में, कॉनकेव मिरर में कभी मैं लेंस बोलती हूँ तो आप नहीं समझिए कि मिरर बोल रही हूँ, क्योंकि अभी 8 में हम लोग लेंस पढ़ा रहे हैं, तो लेंस एंड मिरर वी जस्ट कंफ्यूज्ड, तो हम लोग कभी कभी मुंह से निकल जाता है। तो ये हमारा कॉनकेव मिरर है और वी आर मेकिंग द डायग्राम हियर। इसका डायग्राम इधर बनेगा, ठीक है। यहाँ पे ये फोकस है और ये सेंटर कर्वेचर है। लेकिन जब हम कॉन्वेक्स में इसमें बनाएंगे, अब आपके कॉन्वेक्स लेंस में बनाएंगे तो मेरा सारा डायग्राम्स इधर बनेगा। कहाँ बनेगा? ये जस्ट सी। तो इसमें ऐसे डायग्राम बनता ही नहीं है, ओनली एक डायग्राम बनता है। तो ये हमारा पोल हो जाएगा और हमारा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, ये सेंटर, ये हमारा फोकस हुआ। तो चिल्ड्रन, दिस इज द कॉनकेव मिरर एंड दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर। ओके, तो आप ठीक से देख लीजिए, दिस इज द कॉनकेव एंड दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर। मीन्स की आप, फिर से मैं बता रही हूँ, आप ध्यान देंगे, एक बार ध्यान दे देंगे तो हमेशा आ जाएगा। जब ये मिरर ऐसे बनता है, अभी आर पॉलिश्ड आउटसाइड, बाहर से पॉलिश किए, बीच से मिडिल लाइन ऐसे खिंचाएगा, ओके। और यहाँ पे पोल रहेगा, पोल, पोल मतलब इसका बीच का पोर्शन को पोल कहते हैं। और यहाँ पे फोकस है और इसके डबल पे यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो वी आर मेकिंग द डायग्राम्स हियर, ठीक है। और इसमें है, इसमें यहाँ पे इधर से डायग्राम बनेगा, ये ऐसे लाइन जाएगा, एक्सटेंडेड फॉर्म हो जाएगा एंड वी आर ड्राइंग डायग्राम हियर, ठीक है। ये कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज कॉनकेव मिरर। तो मैंने बताया कि आप स्पून में देखेंगे, ये हमारा कॉनकेव रहेगा और ये हमारा कॉन्वेक्स रहेगा। ध्यान से देखिए एक बार अच्छे से, यू लिसन केयरफुली, देन यू अंडरस्टैंड। नाउ सो मेनी टर्म यूज्ड इन कनेक्शन विद द स्फेरिकल मिरर, बहुत से टर्म यूज्ड है। तो एक बार सारे टर्म को हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक बात आप समझ लीजिए, तो ये मिरर है कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। तो वन साइड स्फेरिकल, एक साइड इसका स्फेरिकल होना चाहिए, नहीं कि एकदम प्लेन हो गया। ये प्लेन इस टाइप का नहीं होगा, इस टाइप का प्लेन नहीं होगा, इट मस्ट बी स्फेरिकल इन वन साइड। एक साइड में ये स्फेरिकल होगा, देखिए ये एक साइड, ये ऐसे हो गया, तो ये हमारा हो गया कॉनकेव, ये हमारा ऐसे हो गया, और ये हमारा ऐसे हो गया, तो ये हमारा कॉन्वेक्स हो गया। ध्यान से देख रहे हैं, दिख रहा है ना? इज इट क्लियर? बस यस और नो बोलिए। यस मैम, यस मैम। फिर बाद में मैम, मैम जो भी मिरर मैम अंदर की तरफ मैम होगा ढकेला, मैम उसको कहते हैं मैम कॉन्वेक्स। हाँ। और मैम जो बाहर की तरफ होगा उसको कहते हैं कॉनकेव। कहेंगे इधर कौन, और ये हमारा स्पून से बेटर दिखाई देगा, बिकॉज स्पून हो गया, या हम कोई बॉल को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो इट विल बी लुक बेटर। मतलब इट मस्ट बी स्फेरिकल इन वन साइड। देखिए यहाँ पे स्फेरिकल है, इधर है इंटरनल है, दिस इज स्फेरिकल। तो नाउ सी योर बुक, अपने बुक में देखिए कि स्फेरिकल मिरर। सिद्धांत जरा ये स्फेरिकल मिरर पढ़िए। Okay, ma'am. Spherical mirror. When we look into a large shiny stainless steel serving spoon kept nearby, our face may appear bigger or smaller than its normal size. It appears bigger when
when seen from one side of the spoon and smaller when seen from its other side. This is unlike the case of a plane mirror, where we get an image of the same size as the object. The difference is due to the curved nature of the surface of the spoon. We thus realize that a curved reflecting surface or mirror behaves in a different way as compared to a plain reflecting surface or a plane mirror. A curved mirror can occur in a variety of shapes, but the simplest of them are the spherical mirrors. A spherical mirror is a special type of a mirror whose surface is part of a sphere. There are two types of spherical mirror, the concave mirror and the convex mirror. Suppose there is a spherical ball of a glass and we cut out a section of this ball. If we now polish the outer side of this section and then cover it with a silver layer and a protective paint, we get a concave mirror. When the silvering and protective paint coating is done on the inner side, we get a convex mirror. ओके सिद्धांत गुड म्यूट कर लीजिए जैसे कि उसने कहा कि वी आर टेकिंग द बॉल एंड बॉल को हाफ करेंगे जैसे मैंने हाफ किया मान लीजिए स्पून है लिया मैंने और बॉल को हाफ किया और हाफ करके जब आउटर साइड आप इसका पेंट कर देंगे और पॉलिश कर देंगे तो ये इज बिकम द कॉनकेव मिरर ये कॉनकेव मिरर हो जाएगा बट व्हेन यू पॉलिश इनसाइड द पॉलिश और पेंट एंड इट इज द शाइनी सरफेस सो दैट इज द कॉन्वेक्स मिरर ये ऐसे रहेगा तो ये कॉन्वेक्स मिरर रहेगा इधर इट्स इनसाइड द पॉलिश रहेगा और जब ऐसे रहेगा दिस साइड द पॉलिश रहेगा तो दैट इज द कॉनकेव मिरर तो इट इज गिवन इन योर बुक चिल्ड्रन दिस इज द स्फेरिकल मिरर एंड देयर आर टू टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर दैट इज द concave mirror and convex mirror now children so many terms are used here so first of all we discuss the term whatever I am saying this is the pole ये जो middle portion है that is the pole ये हमारा focus है और ये हमारा center of curvature है मतलब इस center इस जो line जाता है that is called the principal axis इस line को हम क्या कहते हैं what is the name of this line Principal axis. Principal axis. This line is going where जो ये हमारे पोल से ये लाइन जा रहा है that is called the principal axis. So first of all we discuss it and then we draw the diagram. So center of curvature of the spherical mirror is the center of sphere by which is given the mirror. ये जिससे मिरर इसका पार्ट है या अगर इस मिरर को ऐसे राउंड कर देंगे इसका जो बीच का पार्ट होता है उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं एंड रेडियस क्या है रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ व्हिच मिरर इज पार्ट इन और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है ये जो डिस्टेंस होता है यहाँ से और यहाँ से जो डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर आई विल आल्सो अगेन पोल हुआ मीट पॉइंट ये जो मीट पॉइंट है और सेंट्रल पॉइंट है ऑफ द सेक्शन ऑफ द स्फीयर that is called the pole इसको हम pole कहेंगे this is the meet point और central point of the sphere इस sphere का ये central point है that is called pole इसको हम pole कहेंगे ठीक है अब हम principal axis और spherical mirror ये line joining the pole of the mirror and center ये जो center of curvature और pole से ये जो line joining कर रहा है ये जो line जा रहा है ये जो पोल है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों को ऐड करते हुए जो लाइन जा रहा है दैट इज द पोल दैट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस क्या कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस इसी को हम लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं ठीक है ये प्रिंसिपल एक्सिस ये पोल ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हमारा फोकस दिस इज द फोकस नाउ अब नॉर्मल क्या हो गया नॉर्मल टू द स्फीयर मिरर नॉर्मल पॉइंट होगा नॉर्मल टू द स्फेरिकल मिरर एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस इट इज सिंपली लाइन जॉइनिंग नॉर्मल जब अभी हम डायग्राम ड्रॉ करने जाएंगे तो आपको बता देंगे ठीक है फोकस तो आप देख रहे हैं ये फोकस है सपोज देयर इज अ बीम ऑफ रे जैसे आप मान लीजिए फोकस कैसे जैसे बहुत सारे आया इसमें आप कॉनकेव मिरर में देखेंगे इंफिनिटी से रे आ रहे हैं ये रे आ रहे हैं ये रे आ रहे हैं इस पे यहाँ फॉल्स हो रहा है और ये रे दोनों जाके ये हमारे फोकस में मीट करते हैं
This is meet on the focus. Here, यहाँ focus पे meet की है. देखिए, this is all ray coming and meet on the focus. ठीक है, तो ये हमारा distance focal length हुआ. And when ray is coming from the infinity, कोई भी ray, so many rays are coming. ये देखिए, ये आ रहा है, ये भी focus पे मिल रहा है. ये ray आ रहा है, that is also meet the focus. This is coming, that is meet on focus. This is coming, that is meet on focus. And so many rays are coming and all rays are meet on the focus. Did you understand? Did you understand? Yes, ma'am. Yes, ma'am. फिर से मैम फोकल लेंथ एक और बार मैम बता दीजिएगा ना फोकल. बताती हूँ. देख लीजिए पहले. तो जैसे ये हमारा पहला तो ये हम ऐसे ड्रॉ किए, यानी कॉनकेव मिरर ड्रॉ करें, ऐसे ड्रॉ किए हाफ स्फेरिकल. इसका आउटसाइड हमने पॉलिश कर दिया. वी आर पॉलिश द आउटसाइड. ये हमारा जो लाइन गया, ध्यान से देखिए, ये हमारा लाइन है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है. आप सीधा बनाएंगे, मैंने कहा ना थोड़ा सा ऐसे रहने से ये टेढ़ा बन जा रहा है हमसे. ये देखिए, ये ठीक बना. ये पोल हुआ, ये हमारा जो लाइन गया, ये ही हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है. प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है. अब यहाँ पे फोकस होगा, तो ये डिस्टेंस जो होगा पोल से फोकस का, दैट इज कॉल्ड द फोकल लेंथ. ठीक है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है. अब सो मेनी रेज आर कमिंग. जैसे ये रे आया, तो ये एरो आप जरूर बनाएंगे कि रे इज कमिंग. और ये हमारे कॉनकेव मिरर पे ये फॉल कर रहा है. सब रे आ रहा है, सारे रे आ रहे, फॉल कर रहा है. सारे रे आके फोकस पे मिल जा रहे हैं. यू सी सम रेज, ड्रॉ कीजिए मेरे साथ. ये देखिए, ऑल आर मीटिंग ऑन द फोकस. सारे आके फोकस पे मीट कर गए. ये this is concave mirror. Distance between the pole and focus of the mirror is called focal length. Pole और focus मैंने अभी बताया, ये जो focus है और ये pole है, इन दोनों के बीच को focal length कहते हैं. Focal length, इन दोनों के बीच को focal length कहते हैं. Did you understand? Did you understand? Yes, ma'am. Yes. यस मैम. ये डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहते हैं. और सम रेज आर कमिंग एंड मीट ऑन द फोकस. ये हमारे कॉनकेव मिरर में हुआ. अब सेम कॉन्वेक्स में कैसे होगा, आई विल टेल यू. यू जस्ट सीन 183 पेज में. देखिए 183 पेज में दिया है. अब ये तो कॉनकेव मिरर में हुआ. अब हम देखते हैं कॉन्वेक्स में कैसे होगा. कॉन्वेक्स में देखते हैं. वी आर वॉचिंग इन कॉन्वेक्स मिरर. इसको मिटा देती हूँ. अब देखते हैं कॉन्वेक्स में कैसे होता है. कॉन्वेक्स बना रहे हैं, ये कॉन्वेक्स है. इंटरनल इसका पॉलिश्ड होता है. कॉन्वेक्स मिरर का इंटरनल पॉलिश्ड होता है. कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, इसका इंटरनल पॉलिश्ड होता है. इंटरनल पॉलिश्ड होता है. अब ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है. दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस. ये प्रिंसिपल एक्सिस गया. अब यहाँ पे फोकस है और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है. और ये तो पोल है ही, आप लोग को पता ही है. दिस इज द पोल, दिस इज द फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब सो मेनी रेज आर कमिंग. देखिए सो मेनी रेज आर कमिंग. ये रे आ रही है आपकी, जैसे कि ये रे आया, ये रे ऐसे आया और ये रे दोनों आया. दोनों आया तो इट इज कमिंग, बट इट इज नॉट कन्वर्ज. ये कन्वर्ज नहीं होगा. कॉनकेव में कन्वर्ज हो जा रहा था, दोनों आपकी फोकल लेंथ मिल जा रहा था. यहाँ पे क्या होगा, इट डाइवर्ज. ये जाएगा ही नहीं आगे, इट विल बी डाइवर्ज. ऐसे चला जाएगा और ये भी ऐसे चला जाएगा. इट डाइवर्ज. इट डाइवर्ज मीन्स ऐसे चला गया. और पहले वाला कन्वर्ज हुआ था. पहले वाला फिर एक बार बताती हूँ. ये दोनों डाइवर्ज हो गया. अब क्या करेंगे, अब आर्टिफिशियली बीआर में अब पीछे दोनों को ले जाएंगे. व्हेन इसको दोनों को पीछे ले जाएंगे तो इज मीट ऑन फोकस. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द वर्चुअल इमेज. इसीलिए इसको हम वर्चुअल इमेज कहते हैं. इसका जो इमेज बनता है ना, एक ही इमेज बनता है, बट इमेज इज अ वर्चुअल. और डिमिनिश मतलब बहुत छोटा. डिमिनिश मतलब एकदम छोटा. इसमें जो इमेज बनता है वर्चुअल इमेज. ये इधर आएगा ही नहीं. फिर भी एक रे ऐसे आया, देखिए ऐसे आया और ऐसे लौट गया. ये रे ऐसे आया. फिर से मैं बता रही हूँ, फिर से ध्यान दीजिएगा. एक बार और बता देती हूँ, ध्यान से देखिए. ये हमने बनाया कॉन्वेक्स मिरर.
ये हमने बनाया कॉन्वेक्स मिरर, इसको इंटरनल पॉलिश्ड कर दिया, इंटरनल पॉलिश्ड कर दिया। ध्यान दीजिए, अब इसको मिटा देती हूँ थोड़ा सा जगह बनाने के लिए। अब जो रह गया दैट इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। अब यहाँ फोकस है, यहाँ सेंटर कर्वेचर है, ये पोल है। नाउ रे इज कमिंग, वन रे ऐसे गया फॉल किया, वन रे ऐसे फॉल किया, बट दिस इज फॉल एंड रिफ्लेक्टेड बैक, ये ऐसे रिफ्लेक्टेड बैक हो गया।